So what would you like to say about it? All three projects are doing really well. So सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी द होल रीज़न आई वांटेड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बहुत कम है। मुझे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखते नहीं हैं पर अच्छा है, हम फिल्मों के ज़रिए मिलते हैं। इट्स ईजियर फॉर मी टू कन्विंस यू अबाउट द कैरेक्टर्स देन आई प्ले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, स्पेशली विद आर्टिकल 370 अब धूमधाम, मुझे बहुत मौका नहीं मिला टू कम टुगेदर एंड थैंक मीडिया, थैंक द ऑडियंस for believing in me, for making, for literally giving the true validation एक एक्टर को जो मिलती है कि आपकी चॉइसेस करेक्ट हैं, आपने कैसा काम किया है। मुझे लगता है वो ट्रू वर्डिक्ट ऑडियंस के पास होता है। और पिछले साल ऑफ कोर्स had a baby and you know you get absolutely that's once a mother always a mother, and never got a chance after that to come and express my gratitude to the audience. So this was just a small effort to come in front of the camera and say thank you so much for believing in me. Yummy. Ah, thank you. Thank you. Yeah, I mean, hi. Women Days around the corner, and basically your films that you've done have had very strong female-led characters. You've been the center of all the things. So give us a message for all the women out there, and also like how has your selection process been, specifically for roles that have been so strongly female-led? My message to all the women, what can I give them a message? I mean, each and every woman, be it under this roof right now, along with me, at my home, my mother, my sister, everyone I know, um, my teachers. When I look back at my school days, they have had such a profounding effect, and in my upbringing, in anyone's upbringing, and we are so strong. We're so capable of doing so much more that. वो किसे कहते हैं ना, एक नारी शक्ति, सब कुछ एक नारी में ही समाया हुआ है, सब कुछ है। प्यार भी है, गुस्सा भी है, फॉरगिवनेस भी है, जिसे बोलते हैं सौम्य भी है, सब कुछ है। There's so much strength to the character of a woman that I feel, despite all the challenges that come in our face and come in our lives, we are sitting in 2025 and अभी भी बहुत सारे issues हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी हम अभी भी बात कर भी सकते हैं, करते भी हैं, शायद नहीं भी करते हैं। मेरे पास बात करने के लिए माइक है, आपके पास पूछने के लिए फ़ोन है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सब सुविधाएं नहीं हैं। So the more we can bridge this gap somehow and spread the message of women empowerment in true sense. It doesn't mean you have to be brash. It doesn't mean you have to fight. We don't have to fight. We just have to believe in ourselves. That woman sitting somewhere in Rajasthan who's doing some extraordinary work, be it something as beautiful as making the 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 clothes that they make, the fabrics that they make, or sitting in Gujarat, sitting or doing farming somewhere in the south or up north or in the east. Everybody is every woman is worthy, is of appreciation, of love and respect. So that's, I can only fold my hands and thank each and every woman. Every har mahila pujniya hai. That's how I like to put it. So as an actor, when I get an opportunity to kind of find my balance between, yes, this is a great role for a performer in me, and at the same time taking somewhere step ahead, जिसे हम बोलते हैं, the portrayal of modern women in today's world. हालांकि I don't think every film is to be taken in a way कि अच्छा इसमें हमने क्या सीखा. It's cinema, it's film at the end of the day. हमारा काम है entertainment. But अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं. Thank you. ज़्यादा नारी शक्ति है ना आसपास है. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Go ahead now please. सो हमेशा हमारे थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है, लेकिन उधर डिफरेंट भी है कि जो स्क्रिप्ट आपको पसंद आई थी, आमिर जी को पसंद आई, आप वही करेंगे जिस तरह से आपने फिल्में पिछले 2-3 फिल्में आपकी आई, आप जो है जैसे साल में 5 फिल्में आनी है, 6 फिल्में आनी है, क्योंकि ऐसा आपका कोई भी विजन मुझे नहीं दिखता. मुझे दिखता है कि जो फिल्में आमिर जी को पसंद आती है स्क्रिप्ट
ये तो आपने बहुत भारी सवाल पूछ लिया, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। अवार्ड के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, उसमें तो आई मीन व्हाट कैन आई से, आई कैन ओनली थैंक यू ऑल। आपका बोलना ही बहुत बहुत काफ़ी है मेरे लिए। और जहाँ तक कि रोल की बात है, पिछले ऑफ कोर्स कुछ सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी और मैंने ढूंढी भी, जहाँ पे चाहे वो एक थर्सडे हो, kind of started somewhere in 2019 with Ori and Bala, and of course with a Thursday, Dasvi, Chor, Article 370, OMG, और of course अब धूमधाम। तो क्वांटिटी तो कभी भी मेरा गोल नहीं रहा है, बट हाँ पहले मीडिया में बोलने से थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी, पूछते थे आप बहुत सिलेक्टिव हैं क्या। अब अगर काम नहीं होगा तो सिलेक्टिव ही बोलेंगे, बट अर्लियर आई यूज्ड टू just look for work, but now I'm in pursuit of great scripts and good work. There's a very stark difference. तो वक्त की बात है, और उस वक्त को भी मैं बिल्कुल याद रखती हूँ, तो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ उस टाइम की। बहुत ज़रूरी होता है ये सीखना कि क्या नहीं करना है, बजाय कि क्या करना है या क्या मेरा मन कर रहा है करने का। यू हैव टू ऑलवेज कम बैक टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, और अगर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी अभी जर्नी बहुत लंबी है, अभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इतना ही पहुँच गए जिस तरीके की मैं हूँ, यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी पहुँच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। Character that you played somehow was so relatable to each one of us as female, because कुछ subjects ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में, जिस तरीके से सोसाइटी कंडीशन होती है, अनकम्फर्टेबल हो जाता है बहुत बारी कि इस टॉपिक पे बात खुल के, स्पेशली आपका मोनोलॉग जो आपने बोला, इट वाज लाइक ओके यू आर द स्पोक्सपर्सन फॉर एवरी वुमन आउट देयर, सो थैंक यू। With entertainment you're also touch basing on such subjects, also playing some strong, powerful, profound characters. How do you balance it out? Because especially in today's age of time, when every subject that you choose and pick, people are going to criticize no matter what you do. So, how conscious are you, or how wisely do you decide on taking those parts and playing them so strongly with a lot of conviction? When I finish reading a script, I always take a moment and I just shut my eyes and I just rewind and try and absorb what I've just finished reading, and I listen to the first voice that comes in my mind. I try getting distracted by any other factor. You're right, of course, when your film starts, they start working, people have certain expectations from you, film after film, everything's going right, but of course there'll always be a section which will never be happy with you, who will never think, okay, you're that good enough right now. All those things are there. That's part and parcel of every industry, and especially our industry, क्योंकि बहुत आसान है किसी के ऊपर ओपिनियन देना, जजमेंट देना, खासकर जब कोई कैमरा के सामने हो, है ना। आप ऑटोमेटिकली आप एक पब्लिक आई में हैं, एंड यहाँ पे अगर लोग आपको प्यार करते हैं, कोई भी अच्छा लिखता है वो भी पब्लिक आई में है, कोई नेगेटिव लिखता है वो भी पब्लिक आई में है, और नेगेटिव कुछ भी होता है वो ज़्यादा जल्दी हमेशा फैलता है, राइट। सो यू कैन गेट अफेक्टेड, but I try not to get affected. And although I read everything what's written about my films about me, but I don't take it to my heart. Just the way I don't take a compliment to my head, I don't take criticism to my heart. So that's what I try and follow, and just be true to myself as an artist. Nothing has changed. I have that same spot where I sit and read scripts, the same, no, a different pencil now, वो खत्म हो गई है, and मुझे बस एक बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए होती है, मुझे iPad पे नहीं समझ में आता है कैसे, little old school that way, that's about it. ऐसे ऑडियंस है, स्पेशली आपके फैंस की बात करूँ तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कहते हैं, जो जैसे कि आज की जनरेशन में अगर यंग एक्टर्स आ रहे हैं या फिर स्टार्स आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर प्रमोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कहना है कि यामी इतने अच्छे फिल्में कर रही हैं, चाहे आर्टिकल 370 हो या फिर धूमधाम हो या फिर OMG, बट उतने लेवल पर प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रमोशन ही तो है, बट जिस तरीके से इतने 1 2 3 4 5 मतलब बट जिस तरीके से लोग सोशल
मीडिया पे हर जगह जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो रही है शायद इसलिए लोग, जैसे कि अगर हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें, वो उन तक पहुँच तक नहीं जा रहा है कि दिस इज अ गुड एक्टर एंड ये फिल्में अच्छी कर सकती है। आई थिंक आपको करना चाहिए, आपको मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रमोशन। आई She थिंक means to say कि Yeah. मतलब जैसे कि हर एक्टर सिटी टू सिटी विजिट करते हैं। City to city, they are, everyone's visiting city to city also. क्या बात कर रहे हैं? During movie time? Oh, during movie time तो of course I do. बट उतने नहीं दिखते हैं। आई हाँ। थिंक कहते हैं कि My PR team is standing here. What are you talking? No, I'll put it in a very simple way. Of course, see जितनी आप जितनी चीनी डालेंगे उतनी मिठास होगी चाय में, पर ज़्यादा चीनी भी हार्मफुल हो सकती है ना, तो वो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लगता है हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी है, हर एक एक्टर की, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी, एज आई कीप सेइंग, ये काफ़ी जो लेजेंड एक्टर्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, सुने हैं, पर ये बात अब समझ में आई है, व्हाट इज़ इट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आपने कोई और बन के ये सक्सेस हासिल की तो क्या सक्सेस हासिल की, और अगर कोई ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो मेरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस देख के अगर मुझे कास्ट करेंगे, देन आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दैट काइंड ऑफ रोल। मुझे ऐसा इम्प्रेशन या ऐसा नाम बनाना है, इट्स वेरी सिंपल, दैट इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, दैट मीन्स it's a good script, it's a good part, and we are here to make a damn good film, and my audience will always back me. जहाँ तक कि PR की बात है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। And that's my style of working. And उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आंसर दे देती हूँ, so you can circle back अगर आप ढूंढे मैंने क्या कहा, कि यहाँ तक भी यामी बन के ही पहुँची हूँ, आगे भी यामी बन के ही पहुँचना चाहूँगी। यामी जी, इनसे जुड़ा हुआ मेरा एक लास्ट सवाल है। हाय मैडम, जिस तरीके से हमने देखा है कि बॉलीवुड में स्पेशली ऐसा होता है कि एक तरह से देखा जाए कि सर्टन फिल्म सर्टन अमाउंट या फिर सर्टन स्कोर बॉक्स ऑफिस पे स्कोर करती है, तो माना जाता है कि दैट इज अ शेड ऑफ ब्लॉकबस्टर फिल्म। एंड आपकी हमेशा फीमें तो रही है, हेल्दी बिजनेस किया है, ओ माय गॉड हो या फिर आर्टिकल 370, हेल्दी बिजनेस किया है। सो डू यू रियली थिंक दैट कि ये नंबर्स मैटर्स करते हैं आपको, या फिर ये जो स्कोर्स हो रहे हैं वो रियली दिस ट्रेंड मैटर्स टू यू? I don't know about scores and healthy, but of course, अगर आपकी फिल्म अच्छा करती है प्रदर्शन in terms of numbers, that means it's telling you that the audience is watching the film. If that's a correct number, then that means that your audience is watching. And खासकर अगर आर्टिकल 370 की मैं बात करूँ, वो एक ऐसी फिल्म नहीं थी जो आप बहुत कॉमनली आप देखते हैं, उसमें कोई गाने नहीं हैं, कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी ऐसे कुछ सेंसेशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी फैक्ट बेस्ड फिल्म। ऐसी फिल्म का होल्ड कर पाना प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंसेज, या आप म्यूज़िक चाहे हो, एडिटिंग हो, सब कुछ हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। सो एंड मैं ये जिम्मेदारी बिल्कुल लेती हूँ, अगर कल को जो भी अब अनाउंसमेंट्स आप सुनेंगे, या अभी जैसे विद आर्टिकल 370, अगर इफ़ आई एम I don't know what's the correct word, but if I'm the protagonist of a film, my producer should have that faith that yes, we can carry, क्योंकि ये एक प्रथा, एक नॉर्म है कि अच्छा हीरो कौन है फिल्म में, तो आपका बजट उस पे से डिसाइड होता है, आपकी जो पोजिशनिंग है फिल्म की उसके बेसिस पे होगी। Then I also have to make that kind of backing, a minimum backing for my producer to rely on me कि yes, we can rely on Yami. I rely on script. I rely on how good a film is and what best can I do to give you a performance and what can we do as a film. मैं of course चेहरा हूँ, अभी मैं एक्टर हूँ तो आपको मैं ही दिखूंगी, बट एक फिल्म के पीछे of course सब लोग जानते हैं, पर अब जानने के साथ साथ मुझे लगता है वक्त आ गया है कि और खुल के उन्हें अप्रिशिएट करने का, चाहे आपके राइटर्स हों, आपके DOPs हों, आपके एडिटर्स हों, म्यूज़िक हो, बैकग्राउंड हो, they are the ones who making the film, because I'm very invested in all the departments. जब मैं एक फिल्म साइन करती हूँ, मैं एक्टर से पहले साउंड कौन कर रहे हैं, एडिटिंग कौन कर रहे हैं, म्यूजिक कौन कर रहे हैं, अच्छा शूट कौन कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई टेक्निकल टीम। तो ऑफ कोर्स सक्सेस पाकर किसे अच्छा नहीं लगेगा, यू नो,
और अच्छी बात है, बट अपना एक वैलिडेशन अगर नहीं भी होता है, in the sense if the film doesn't do well, God forbid, then also you should not, as I said, take it to your heart. There's a next time. Next time हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा कम होता है, इसलिए we have to deliver consistently with every film, and I take it as a good challenge. I'm not unhappy about it or I have any complaint कि अरे मुझे ये मौका नहीं, कुछ नहीं, there's no complaint. I'm very happy. It keeps me on my toes. It keeps me my perspective sharper. So I don't know when we'll meet next, but again, it'll be, as I promised, some will be worth the wait. No, I won't give you that code. Numbers matter to me. So I'm not giving you that code. Yeah. Hi. Thank you. 5 years we are seeing the rise of Yami and the gems you have given to Bollywood, be it Article 370. I want to know what is your next big goal, not just professionally but personally as well. I think personally, my big goal, I don't know about big goal, but as I said, I think becoming a mother is the most beautiful emotion, is the most beautiful feeling, and there's I don't know how can I describe that feeling ever in words, or can give you the perfect answer. It's all here. It's all in my eyes, and every time leaving home for work, it just keeps getting harder. It's so difficult, but I hope to make him proud. I hope when he reaches that age, when he watches his parents work, he's proud. Thank you. Thank you.